stress transformation, there are two special angles. One is called theta P, at which we get maximum or minimum normal stress, and the other special theta is theta S, at which we get either maximum shear stress or minimum shear stress. If you remember, we call that maximum shear stress as the maximum in plane shear stress. Now let me explain why we say why we call that in plane maximum shear stress. Okay, so let me show you a general state of stress. Okay, so this is a given element with coordinates with the reference axis x, y, and z, and you see that we have shown this element as an element representing the principal state of stress. As you can see, sigma 1 and sigma 2, they are representing the principal state of stresses. Agree? So it is any element, and then you know that for every element you can work out the orientation theta p, for which case the shear stresses on the faces would be 0 and the normal stress would be either a maximum or a minimum. We have called the maximum value as sigma 1 and the minimum value as sigma 2. We have given them a short representation. Instead of calling them sigma max and sigma min, we have called them sigma 1 and 2. So sigma 1 and 2 doesn't mean that it is first stress and second, first one principal stress and the other principal stress. Okay? Sigma 1, we have reserved this representation for the maximum of them, algebraically maximum, and sigma 2 for the algebraically minimum value. Okay, so sigma max is called sigma 1 over here, and sigma min is called sigma 2 over here. Clear? Now, once we have found these values, we have redefined our coordinate system. By redefining, what I mean is that initially there were some other orientation which was x, y, and z, and with the help of those reference axes, we located theta p. If you're not getting this point, please give me a moment. I can explain to you. I think this needs some explanation. So the original element may be something like this. Okay, with some stresses, maybe let's call them sigma x, sigma y. Okay, and tau x, y. Okay, this is the given element. Now what we did is, we did a step. If we have not shown that step over here on the slide, but we have done that step. How did we do? We calculated theta p. We calculated theta p. You know, we got two values and then we do all those calculations and then you reach. For example, this is the element. Okay, so maybe this was your one of the values of theta p. Okay, is this clear? Yes. Now, once we have got this element representing principal stresses, maybe this was, if this is how they have shown it, let me show sigma 1. If this is, let's say, sigma 1 and this is sigma 2, then we just we have got x, y, and z coordinate system over here. X, y, and z is outer plane. But we are going to redefine our reference coordinate system after reaching this result. Are you getting my point? So we redefine our coordinate system as this: x along the maximum principal stress, sigma 1, and y, if I'm not mistaken, we take it along the other sigma 2 axis. This axis के along sigma 1 है, उसको हमने x axis का नाम दे दिया और उसको y. अब ये वाले x y और थे, अब मैं इनको यहाँ पे हम इसको p q r ऐसे एक्सिस यूज कर सकते हैं. p q r एक्सिस x y z करते, लेकिन x y z से हम सभी फेमिलियर हैं, तो हमने वही सिंबल जो यहाँ यूज किए थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए, वही सिंबल हमने यहीं पे दोबारा यूज कर दिए x y और z. Is this clear? So this is the background for this figure. Okay. Now, both sigma 1 and 2, they are in this xy plane. ये भी xy plane में state of stress था. Z पे तो कोई state of stress नहीं है ना. If you remember, ये basically इस तरह का ये stress इधर act कर रहा है,
कर रहा है, इधर एक्ट कर रहा है। ये वाला जो फेस है, जो जी वाला आउट ऑफ द प्लेन, इस पे कोई स्ट्रेस इसमें भी नहीं था और यहाँ पर भी कोई स्ट्रेस इस जी वाले पे नहीं है। इसी प्लेन में सिर्फ स्ट्रेसेस हैं, इस वाले फेस के ऊपर, एक्स वाले फेस पे और वाई वाले फेस, इनके ऊपर स्ट्रेसेस हैं। यानी इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का एक्स वाई तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई उनकी वैल्यूज हैं, और यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो सिर्फ उसके अंदर प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस है, वो नॉर्मल स्ट्रेस के स्पेशल वैल्यूज हैं सिग्मा मैक्स सिग्मा मिन। यानी कि दिस इज द ओनली डिफरेंस, कोई शेयर स्ट्रेस इसमें नहीं है। हम इसको एज अ रेफरेंस अब लेके चलेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशन, ठीक है? अच्छा, अगर आपसे मैं कहूं कि इसके लिए, लेट मी शो यू, now we have represented this as the principal stresses, okay? Now the new coordinate system x y z chosen such that x and y axis align with the direction of the principal stresses. So मैंने अभी बात की, clear? Now sigma 1 along major, which is major principal axis, major principal stress, sorry, along x axis, and x axis हमने किसको चूज किया? जो sigma 1 वाली डायरेक्शन है। then y axis along sigma 2, इसको उलट वैसे लिखना चाहिए था, हमने इस तरह लिख दिया, sigma 1 along में x axis लिख दिया। अब हमने असल में sigma 1 और sigma 2 पहले फाइंड की, बाद में से x और y को रीइंट्रोड्यूस किया, ठीक है? सो x कहाँ शो किया? along sigma 1, y कहाँ शो किया? along sigma 2. Now first case, so there are basically three possibilities. Sigma 1 and sigma 2 both have, so basically two possibilities. एक possibility है कि sigma 1 और sigma 2 दोनों सेम साइंस हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। दूसरी possibility क्या है? आप बताएं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस सूरत में आप बता सकते हैं कौन सा पॉजिटिव होगा? सिग्मा। अगर इनकी डिफरेंट साइंस हो तो कौन सा पॉजिटिव होगा? सिग्मा मैक्स, सिग्मा 1, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो जनरली बड़ी वैल्यू है, तो अगर डिफरेंट साइंस है इसका मतलब पॉजिटिव वाला ही सिग्मा 1 हो सकता है, ठीक है? अगर सेम साइन है तो फिर आपको देखना पड़ेगा पॉजिटिव है दोनों या नेगेटिव है। Let's, and case 2 is that sigma 1 and sigma 2 have opposite signs. Okay, ये मैंने जो ऑनलाइन पढ़ाया था तो उसको ये एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर है, ये बताएंगे, I hope it doesn't disturb you. Now let's look at the first case. Sigma 1 and sigma 2 are having same signs. Case number 1. If they have same signs, it means we have to show them both as tensile or both compressive, whatever is the case. Okay? So let's show them in general. Three possible ways to look at the state of stress. This is the thing I want you to understand. One way is looking at this figure from z-axis. जैसे ये है, ये x है, ये y है, और आप इसको z से देखेंगे तो आपको जो वैल्यूज जो आपको नजर आएगा उसमें एक ये इस प्लेन पे स्ट्रेस नजर आएगा, x वाले प्लेन पे, और एक इस प्लेन पे स्ट्रेस नजर आएगा। सिंपल, ये तो आपको क्लियर है ना? सो इस फर्स्ट वे को देखें, लुकिंग फ्रॉम z एक्सिस, जो हम नॉर्मली इस तरह देखते रहे प्लेन स्ट्रेस को, कि z वाली साइड से हम देखते हैं उस पे कोई स्टेटस स्ट्रेस नहीं होता, ये z वाली साइड है, इस पे कोई स्ट्रेस नहीं एक्ट कर रहा, इस तरह से कोई स्ट्रेस नहीं एक्ट कर रहा, ये प्लेन स्ट्रेस की बात हो रही है। तो हम नॉर्मली z से इसको देखते हुए जो रोटेशन हम देते हैं वो इसी xy प्लेन में दे रहे होते हैं, to get different values on the faces of the stress or faces of the element, different stress values। थीटा की वैल्यू कैसे लेते हैं? ये इसको क्या कर रहे होते हैं? ये रोटेट करते हैं तो ये पोलर रोटेशन बन जाती है। वो जो थीटा की वैल्यू हम ले रहे होते हैं वो z से देखते हुए xy प्लेन में with respect to this axis certain रोटेशन लेके हम कर रहे हैं। This is what we have been doing so far, ठीक है? तो this one way of looking at it कि ये x प्लेन स्ट्रेस है और xy प्लेन में वो स्ट्रेसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है? So if you look at it from z axis, you see this plane stress in xy plane, and this is how it looks like. अगर आप कहते हैं तो मैं इनको दिखा देता हूँ। So
is something we have discussed, और हमने कहा कि case 1 is same sigma 1 and sigma 2 have same signs. Now we have got 3%. इसी एक case को हम looking at, looking from z axis. This is the state of stress. is यहाँ पर clear? z axis से आपको यही नजर आएगा ना? अगर आप ये आप समझो ऊपर से आप इसको देख रहे हो, वो सी ऊपर है वहाँ पर, ठीक है? और आपका आप पहले थोड़ा इस बात को समझ लें कि आप खड़े कहाँ पर हैं, आप ऊपर से इसको देख रहे हैं और आपका इस तरह से मुंह है, यूँ आप खड़े ऊपर से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है? तो आपके वो इस तरह से जो वो एक्स एक्सिस बनेगा और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है वो वाई एक्सिस बनेगा। क्लियर? ऑलराइट, सो अब इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसके लिए आप मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताएं इस केस के लिए, तो आप क्या करेंगे? मोर सर्कल प्लॉट करें। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ हैव सेम साइन, आप एज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव है दोनों। आप ये article maybe you can do it on article, but I want you to do it just conceptually. कोई भी आप ड्रॉ कर रहे हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की कोई भी वैल्यूज लें, आई होप यू शुड हैव नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की आप कोई भी वैल्यूज लें इस तरह से, दिस इज द सिग्मा एक्सिस, दिस इज द tau एक्सिस। जैसे आप कहते हैं कि अगर आप समझने के लिए कह रहे हैं क्या सेक्वेंस ये सिग्मा 1 है और ये मेरा सिग्मा 2 है, ठीक है? सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 दोनों सेम साइन मैंने शो कर दी ना, सेम साइन, या मैं दोनों इस तरफ शो कर लेता या मैं इस तरफ शो कर लेता, मैंने दोनों को पॉजिटिव की तरफ शो कर दिया। अब आप मोर सर्कल ड्रॉ करना होगा ना, करें। अब ये बहुत सिंपल सा केस है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन है ना आपके सामने, ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, ऐसे ही। लेकिन अगर आप अपनी रिकॉल करें तो ये सिग्मा x की वैल्यू सिग्मा 1 है, सिग्मा y की वैल्यू सिग्मा 2 है और tau x y की वैल्यू 0 है। तो आप इसका सेंटर कैसे लोकेट करते हैं? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2, तो इससे यहाँ पर सेंटर बन जाएगा। और इसका रेडियस कैसे लोकेट करते हैं आप? माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y by 2 whole square plus tau x y का square, which is 0 in this case, ये बनेगा which can be written as sigma 1 minus sigma 2 by 2। ये तो 0 है ना, so this is the radius, and और जो radius of the circle होते हैं वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? मैक्सिमम नहीं था, tau x का फार्मूला आपको याद है? यही फार्मूला था जो r का फार्मूला है, जो r का फार्मूला था वही tau x का फार्मूला था ना, ठीक है? तो यही r है बेसिकली, दिस इज योर tau max। इस tau max की वैल्यू को हमने बोला था tau max इन प्लेन क्यों बोला था? कि ये जो हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है tau max की, ये जिस प्लेन में ये दोनों स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं उसी प्लेन में हमने उसको रोटेट करके एक नया एलिमेंट बनाया जिसपे ये वाला स्टेट ऑफ स्ट्रेस आएगा tau max का। यानी प्लेन वही है, इस प्लेन में आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये भी इन प्लेन प्रिंसिपल पूरा नाम रखा है, तो इसको भी आप प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल सकते हो। और इसी तरह कोई और एक एलिमेंट है जो इसी प्लेन में ओरिएंटेड है, तो हमने उसके ऊपर ये वैल्यू फाइंड कर लिया। हमने थीटा s की वैल्यू पे हम नहीं गए कि थीटा s की वैल्यू कितनी होगी, किस प्लेन पे होगा, ये हमने थीटा p की वैल्यू की भी बात नहीं की, वो वैल्यू कितनी है, बस कोई भी वैल्यू है, लेकिन उसमें जो आंसर्स निकलने हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन पहले कह रहे थे, उनकी हमने बात की, उनकी टर्म्स में हमने कहा कि दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tau max, ठीक है? दिस इज द tau max वैल्यू। यानी अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनके सेंटर में इनका रेडियस
इनके जो एवरेज है वहाँ पे उनका सेंटर ऑफ सर्कल, और अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो इस तरह का कोई सर्कल बन जाएगा। ये जो इसका रेडियस है, दिस इज इक्वल, मैं इसको रेडियस लिखने के बजाय टर्म एक्स लिख देता हूँ। दिस टर्म एक्स in plane is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2। ऐसे ही है, नजर भी आ रहा है ना आपको, ये ऐसे ही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस कितना होगा, जितना सिग्मा 1 ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा 1 है, ठीक, ये सिग्मा 2 है। अगर आप ये डिफरेंस देखिए तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का डिफरेंस है, उसको हाफ करेंगे तो ये इसका रेडियस बनेगा। ग्राफिकली आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो इक्वेशन भी आपके पास है, क्लियर? जी सर। बट इस अगर आप अभी हम इसको देख रहे थे इस वक्त z से देखते हुए, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जब हम सारी ये डिस्कशन चल रही थी। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम y एक्सिस, प्लीज ड्रॉ ऑन योर रजिस्टर, अगर आप इसको y एक्सिस से देखें, क्या मतलब, अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं और y से आप इसको देख रहे हो तो आपको जो, अगर आप जिस तरह मैंने ये ड्रॉ किया था तो आपको क्या नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट ड्रॉ करूं तो ये x वाली साइड थी और ये y वाली साइड थी, z से मैं इसको देख रहा था। अगर आप ये y वाली साइड पे खड़े हो जाएं और इसी एलिमेंट वही है, सिर्फ देख रहे, पहले z से देख रहे थे इसको, x y प्लेन में सारी कैलकुलेशन चल रही है, अब हम इसको y से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आएगा, प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं रजिस्टर पे, कि आपको फिर क्या एलिमेंट नजर आएगा, उसमें स्ट्रेसेस क्या होंगे। हाँ, और ये आपको ऐसे नजर आएगा ऊपर बॉडी ऑफ सेम, यार मैंने भी सुना, दैट्स इट। क्योंकि आप y से तो हम इसको देख रहे हैं, वो आपको नहीं नजर आएगा। सो अब आप इसको बेसिकली y से देखने का मतलब ये है कि आप इसको xz प्लेन में क्या है, आप इसको अभी भी प्लेन स्ट्रेस कह रहे हैं। प्लेन स्ट्रेस कहने का मतलब है आप कह रहे हैं वन ऑफ द फेस इज स्टिल स्ट्रेस फ्री, लेकिन अगर आप इसको y से देखें तो आप इसको xz प्लेन में देख रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब है दिस इज द x एक्सिस और ये वाली साइड z एक्सिस। क्लियर हो गया? अब अगर आपसे मैं कहूं कि इस केस के लिए मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताएं, सेम प्रोसीजर। इस केस में सिग्मा x है सिग्मा 1, वहां पर हम सिग्मा y बोलते थे क्योंकि ये वाला जो सिग्मा y होता था, यहाँ पर जहां हमने y बोला था सिग्मा 2। लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं सी सैंपल से नाम ही यूज करूं सिग्मा x और सिग्मा z वाले, तो आपको ये पता है कि जब मैं r की वैल्यू लिखूंगा, r विल बी राइटिंग ये वाला स्ट्रेस सिग्मा x, जो सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 होल स्क्वायर आप कहते हैं ना, सिग्मा 1 माइनस यहाँ वाला स्ट्रेस का स्क्वायर व्हिच इज 0, अच्छा दिस इज बाय 2 होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, r इक्वल टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 होल स्क्वायर प्लस tan xy स्क्वायर होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, सॉरी होल स्क्वायर रूट, और यही आपकी वैल्यू थी tan x की, ऐसे ही था कि जिस प्लेन में अगर xy प्लेन में है तो xy प्लेन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऐसे फाइंड होगा, अगर xz है तो x जहां जहां y लिखा हुआ है वहां पे z हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं क्या लिखवानी, स्क्वायर होल और ये क्या होगा, वो वैसे 0 है स्क्वायर। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ इट, सिग्मा 1 by 2, sigma 1 by 2 square root 2। all right, so this is your term x for, अब मैं इसको टर्म इस तरह बोल देता हूं, टर्म x z max, ठीक है, यानी x z प्लेन में दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। इसका आपको फिजिकली आपको मतलब बताऊं क्या मतलब बनता है कि आप प्लेन x y प्लेन में हम ये कर रहे थे, g से देखते थे और ये किसी एक प्लेन पे हम रुक जाते थे कि दिस इज द प्लेन, दिस इज द ओरिएंटेशन ऑन व्हिच फॉर व्हिच वी विल गेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट। ये यही था, ऐसे रोटेट करके किसी एक थीटा s की कोई इस तरह से रोटेट करके हमें कोई वैल्यू मिलती थी। अब जब हम कह रहे हैं ये वाली वैल्यू, इसका मतलब पता है क्या है, ये अगर आप जैसे ये x और y और z बाहर की तरफ है,
आप इसको y वाली साइड से देख रहे हैं, देखें यहाँ पे आप y वाली साइड से देख रहे हैं और सॉरी ये y नहीं ये y है, y वाली साइड से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। मैं तो इसको रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ दोबारा से, ये थोड़ा टेढ़ है तो समझने में समझाने में थोड़ी आसानी मुश्किल होगी। ये x y और z y वाली साइड पे, ठीक है। तो अब मैं जब मैं z की बात करता हूँ ना कि फ्रॉम z एक्सिस, तो ये x y प्लेन में हम ऐसे रोटेशन कर रहे थे कि कोई एक जगह रुक जाते थे कि दिस इज द प्लेन, दिस इज द ओरिएंटेशन फॉर व्हिच वी आर गेटिंग मैक्सिमम ऑन दीस मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस ऑन दीस प्लेन, ठीक है। फिर अब हम कह रहे हैं y से देख रहे हैं और रोटेशन x z प्लेन में करनी है। इसका मतलब है आप ऊपर से, इस केस में जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप इधर से देख रहे हैं और आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस प्लेन में। अगर इसको पहले रोटेशन क्या थी, इस प्लेन में x z से आप देख रहे थे और ऐसे रोटेट करके आप कह रहे थे इस प्लेन में जब रोटेशन देंगे तो वो प्लेन जिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बनेगी वो पहले में फाइंड करेंगे। अब हम कह रहे हैं हम इसको ऊपर से देख रहे हैं और इस प्लेन में सॉरी ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, हाँ ये इस प्लेन में ये रोटेशन, ठीक है। और अब अगर आप इसको अच्छा मोर सर्कल इसका अगर प्लॉट करना हो, सेंटर कहां पे लाई करेगा, सिग्मा x और सिग्मा y का एवरेज क्या बन जाएगा, सिग्मा 1/2, क्योंकि दूसरा जीरो है ना, सिग्मा x और सिग्मा z का एवरेज होता है तो वो जीरो है इसका एग्जैक्ट, तो इसलिए सिग्मा 1/2, सेंटर इज सिग्मा 1/2, दिस इज सिग्मा 1, सो वेयर शुड बी सिग्मा 1/2। इसके हाफ में है। जब ये हमने ये जो पॉइंट जो क्लियर किया था सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को ऐड करके उनका हाफ था, अब हम कह रहे हैं सिर्फ सिग्मा 1 का हाफ, तो इसका मतलब है ये वैल्यू थोड़ी छोटी होगी, हम लोग इस तरफ आएगा, जीरो से स्टार्ट हाँ यानी इसका एवरेज। अभी हमने कुछ टू द स्केल नहीं किया, वो एनीवेज ऐसे करके कुछ बन जाना चाहिए इसको, ऐसे ही है सर, ये भी इन प्लेन हो गया। हाँ ये x1 प्लेन में नहीं है, सब अदर है, इसलिए हम इसको इन प्लेन हम इसलिए नहीं बोल रहे कि जिस प्लेन में ओरिजिनल स्ट्रेसेस थी जो फिर बिठा भी दिए यहाँ पर xy में, उस प्लेन में रोटेशन नहीं थी, इसलिए इन प्लेन नहीं बोल। इन प्लेन हम वर्ड बोलते थे कि जिस प्लेन में आपको स्ट्रेसेस नजर आ रही है उसी प्लेन में सिर्फ रोटेट कर ले, तो फिर जो स्ट्रेट स्ट्रेस है, जो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू, उसको इन प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है। सो अब हम इसको इन प्लेन नहीं बोलेंगे, ये आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन से मतलब कि अब हमने रोटेशन उस प्लेन में नहीं दी जिस प्लेन में ये लाई कर रहे थे स्ट्रेसेस, ये डिफरेंट प्लेन है, डिफरेंट। ये कैसे पॉसिबल है, रेडियस जो है शेयर टॉ मैक्स के बराबर है, टॉ के पास हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसका मतलब शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट आर और करती टॉ मैक्स की वैल्यू कैसे इक्वल है, है, एग्जिस्ट कर रही नहीं नहीं सर, एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, लेकिन हमने ऊपर तो टॉ x/0 लिया हुआ ये नहीं सर, वो फार्मूला में हमने सिग्मा 1 - 0 किया है, ये यहाँ पर नहीं, ये टॉ xy 0 ही है स्क्वायर, ये हाँ, यहाँ पर 0 सर, बाहर में फिर कैसे निकलेगा, और पहले 0 बाहर में सर एग्जिस्ट कर रही है ना वैल्यू शेयर की, कहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है, यहाँ पर रेडियस के बराबर है। okay, this was I got your question. जो ये फार्मूला है जिसमें कहा xy लिखा है, वो है फॉर रेफरेंस स्टेट x, y और z, इस प्लेन पे जो स्ट्रेस है उसका नाम है टा xy और वो 0 है। लेकिन अगर हम किसी और एंगल पे इसको रोटेट कर लेंगे तो उस पे 0 नहीं होगा, यानी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं आपको मिसाल में कुछ करता हूँ, ये तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया ना, सिग्मा x सिग्मा y टा xy, ऐसे ही है, टा xy यहाँ पे नॉन जीरो है। मैं कहता हूँ इसको मैं अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने स्टेट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड किया और वो ये बन गया, और इसमें स्ट्रेस कितने हैं, 0। अब मैं कोई और स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करता हूं और उस पे मैं
यानी ये थीटा p वाला स्टेट स्ट्रेस है, ये थीटा s वाला है, उसमें क्या होगा, यहाँ वाला जो स्ट्रेस है वो मैक्स होगा, स्ट्रेस टू शियर ये इसीलिए थीटा s हम कह रहे हैं इसको, और ये और यहाँ पे नॉट एवरेज वैल्यूज होंगी, एवरेज ऑफ सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो भी आ गया, ठीक है। सो ये है आपके रेफरेंस एलिमेंट के फेसेस के ऊपर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और ये जो निकल रहा है वो किसी और प्लेन पे है, सो इन दैट केस अगर आप सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल जैसे अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर्कल अगर आप ड्रॉ करें उसका रेडियस जो होगा बस वो बराबर होगा, अच्छा ये हमने वैल्यू नहीं लिखी इसकी ना अभी यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी मैंने, अच्छा यहाँ वैल्यू सॉरी यहाँ पे लिखेंगे आप, ये इसका लिखिए यहाँ लिख लेंगे, सेंटर की सिग्मा 1/2, इसका रेडियस भी सिग्मा 1/2, तो उसका जो सर्कल बनेगा वो इस वाले सर्कल से छोटा होगा या बड़ा होगा, एक सर्कल है उसका रेडियस कितना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है सिग्मा 1/2, उसमें से ये चीज सबट्रैक्ट नहीं होगी, बड़ा होगा, एग्री। अच्छा अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये उसका रेडियस है ये वाला, और ये इसको हमने नाम दे दिया, इस यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दिस इज एक्स जी मैक्स, क्योंकि ये हमने एक्स जी प्लेन में इसको कंसीडर किया। नाउ फाइनली अगर आप इसको एक्स एक्सिस से देखें, इसका मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, इधर से आप इसको देखें तो आपको सिग्मा 2 नजर आएगा, और ऊपर वाले फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, यानी अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपको, ये वो था जो हमने अभी कर लिया एक्स जी वाला, और अगर आप इसको एक्स एक्सिस से देखें यानी वाई जी प्लेन में, तो आपको ये नजर आएगा, ऐसे ही होगा ना, सिग्मा 2 नजर आएगा सिर्फ। इस केस में अगर आप वर्कआउट करें तो आपको जो r की वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर केस के लिए, दिस इज सिग्मा 2 और ये 0 है, सिर्फ मार्क कर लें कि ये आपका y प्लेन है और ये आपका z प्लेन है, स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले किस प्लेन की बात कर रहे हैं। सो अगर आप इसके लिए यही इक्वेशन अप्लाई करें, सेंटर और रेडियस को कैलकुलेट करें, इसका सेंटर अगेन सिग्मा 2/2 के इक्वल होगा, क्योंकि एवरेज ऑफ दिस एंड दिस सेंटर जो उसका कोऑर्डिनेट है, और रेडियस देखो यार 0, अच्छा नहीं सॉरी, ये सिग्मा 2 माइनस 0 ओके बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो आंसर क्या बनेगा, सिग्मा 2/2, एंड दिस इज योर tau yg max. Is this clear? इसका आप जरा देखिएगा, मैंने उल्टा स्टार्ट कर दिया, अभी जो किए ना लुकिंग, अच्छा नहीं उल्टा नहीं स्टार्ट किया, पहले वाला लुकिंग फ्रॉम z एक्सिस, ये स्टेट स्ट्रेस था, ये वाला आपको नजर आ रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2, प्लॉट द मोर सर्कल, ये भी जो अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस की वहाँ पे बस क्विकली आपको फ्लैश कर रहा हूँ। Do you remember? We did this. Sigma 1, sigma 2, and this is a circle. And again मेरे पास slides नहीं है, slide नहीं है, ये वो सर्कल से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। Look at the x y वाला सर्कल, उसमें x प्राइम y प्राइम डाले हुए, क्योंकि जाहिर है वो जैसे आप एक जैसे x y तो रेफरेंस के लिए थे ना, यानी जैसे आप कहते हैं ना x y है, तो फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करके कहते हैं सिग्मा x प्राइम सिग्मा y प्राइम था x प्राइम y प्राइम, इसलिए उसमें प्राइम भी डाले हुए हैं।
तो नेक्स्ट ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये वाला, जिसमें आपको नजर आ रहा है ना सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो हमने यहाँ प्लॉट किया हुआ है, जिस वो वाला सर्कल है, और इसका जो मैक्सिमम है tan x प्राइम y प्राइम मैक्स, इसको उसने कहा मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस और उसकी वैल्यू ये वाली लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला सर्कल देखो जो आपका एक्स जी वाला था, एक्स जी, उसमें जो मैं आपको पहले भी बात कर रहा था जी, ये हमने यहाँ पर गलती वैसे ये की थी कि हमें ये सर्कल के सेंटर में गलत लोकेट किया, तो मतलब स्केल के लिहाज से कि हमें जैसे भी था सर उस प्राइम को छोड़ देता परफेक्ट प्राइम। तो ये इसको देखें एक्स जी वाले को देखें, बड़ा सर्कल नजर आ रहा है और उसका रेडियस हमने कितना कैलकुलेट कर लिया था, x is equal to sigma 1 by 2 सिग्मा 1/2 ये है ना, एक्स जी वाला ये है ना, और उसका रेडियस हमने कैलकुलेट किया सिग्मा 1/2। यस क्लियर। तो सिग्मा 1/2 इसका रेडियस है, इन इस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो सिग्मा 1/2 मैक्सिमम इन प्लेन शियर, सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्स जी के लिहाज से, और वाई जी के केस में sigma 2 by 2 वाई जी के केस में द रेडियस इज सिग्मा 2/2, हाफ ऑफ सिग्मा 2। ठीक है, जो सबसे डार्क सर्कल छोटा जो नजर आ रहा है। अब हर प्लेन में रोटेशन देने से हम, जैसे आप देखिए मैं आपको जरा फिजिकली देखो इसको, जिसके लिए क्यूब मंगवाया था, इस प्लेन में समझिए अगर आपको मैं इमेजिन करवाऊंगी ये एक्स वाई और ये जी है, एक्स वाई प्लेन में हमने कहा इसको इस तरह से एक खास एंगल है जिस पे अगर इसको ये पड़ा हो तो जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो अपने मैक्सिमम पे होंगे। ठीक, एक बात क्लियर होगी। लेकिन हमें किसने मना किया है कि आप सिर्फ इसी तरफ ही रोटेट कर सकते हैं, किसने नहीं मना किया ना। सो व्हाट वी कैन डू इज कि अगर हम कहें कि व्हाई नॉट कंसीडर सिर्फ ये रोटेशन नहीं, व्हाई नॉट कंसीडर दिस रोटेशन एज वेल। ठीक है, ये वाली रोटेशन भी हो सकती है और ये वाली रोटेशन भी हो सकती है। तो हर प्लेन में जो एक रोटेशन देने से उस प्लेन के लिए मैक्सिमम एक शियर स्ट्रेस तो आ रहा था, लेकिन वो उसी प्लेन के लिए मैक्सिमम था। इन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू हो, इन तीनों प्लेन्स के अपने अपने मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हैं, इन तीनों मैक्सिमम में से बीच में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मतलब आपको समझ आ गया। हर प्लेन में रोटेशन देने से आपको एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। तीन वैल्यूज होंगी फॉर वन वैल्यू फॉर ईच प्लेन, और देयर आर थ्री पॉसिबल प्लेन्स दैट यू कैन कंसीडर। सो इट मींस द मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या वैल्यू होगी, उन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू है, और वो आपको सर्कल के रेडियस से फौरन नजर आ जाएगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, सो अब आप खुद बताएं कि इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इन तीनों में से, जिसकी वैल्यू कितनी थी? सिग्मा 1/2। Does it make sense? So when sigma 1 and sigma 2, this is a summary. If when sigma 1 and sigma 2 have same sign, then the absolute maximum shear stress is not equal to the in plane maximum shear stress जो आप x y के लिए करते हैं. It is equal to sigma 1/2. Is this clear? Yes. इसलिए उसने उसको बॉक्स किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ये किस केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, when sigma 1 and sigma 2 have the same signs. अगर ये दोनों नेगेटिव होते फिर भी यही बात ट्रू होती जो आपने दोनों पॉजिटिव के केस में देख लिए. Now let's consider the other case when they have opposite sign. When they have opposite sign, we have discussed that then sigma 1 will be positive tensile, sigma 2 will be negative, compressive. So look at this case. Sigma 1 is tensile. ये वाला तो आपको दिखा रहा हूँ. Sigma 1 is tensile, sigma 2 is compressive. In this case, again, you can do similar calculations, and you can see that these will be उसने वो दोबारा से वो तीन जो हमने यहाँ पे जैसे ये ड्रॉ कर लिए थे वो ड्रॉ नहीं किए डायरेक्टली, उसने सिर्फ सर्कल्स आपको दिखा दिए. In that case,
अगर आप सर्कल्स को थोड़ा सा, अगर आप सिर्फ ये ड्रॉ कर लें, लेट मी शो यू, ये मैं बता दूं, और आप अपने रजिस्टर पे इसको ड्रॉ कर लें, लुकिंग फ्रॉम z एक्सिस, लुकिंग फ्रॉम y axis and looking from x axis. Looking from z axis, वो एलिमेंट ड्रॉ करके जो आपको एक प्लेन नजर आएगा, ठीक है, दिस विल बी सिग्मा 1 एंड दिस विल बी सिग्मा 2, और ये x है और ये y है। अच्छा बताएं, जब आप इसको z से देखेंगे तो वो तो मैंने ड्रा कर दिया, जब आप इसको y से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, ओनली सिग्मा 1, तो जब आप इसको y से देखेंगे then this is your x and this is your z, और जब आप इसको from x axis देखेंगे then you can only see this thing, sigma 2, ठीक है, so this is the y side and this is the z side. Again you can see that the radius would be equal to how much? Sorry, sigma 1 minus sigma 2, and keep in mind that sigma 2 has a negative value. For example, if it is 10 minus 5, are you getting it? So ultimately those numbers add up होंगे. It is a positive number minus, और ब्रैकेट में जब sigma 2 की वैल्यू आप डालेंगे तो वो भी एक नेगेटिव नंबर होगा. So minus into minus plus बनेगा, तो ultimately you're gonna get a bigger number out of it. Okay? By 2 whole square plus 0 square, जिससे आपको फाइनली ये आंसर मिलेगा sigma 1 minus sigma 2 by 2, and this is your tau x prime y prime max. Is this clear? इस केस में क्या होगा, r will be equal to sigma 1 by 2, और ये आपका है tau x prime z prime max, और इस केस में r will be equal to sigma 2 by 2, और ये होगा tau y prime z prime max. Is this clear? So which one is now bigger numerically? बड़ा रेडियस किसका होगा, सर्कल का? अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रही तो मैं आपको नंबर देता हूँ, XY प्लेन sigma 2 is -3, चलो मैं कहता हूँ -4, पहले वाले का कितना बन जाएगा, 7, 10 minus 4 by 7 हो जाएगा, और ये 5 ये दो -2, जो कि -2 भी हो सकता है और +2 भी होगा, रेडियस ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी. ओके, सो what is the bigger number? The first one. XY plane Okay, so it means when they have look at the circles also. Okay, tau x prime y prime max, ये वाला जो सर्कल है बड़ा वाला, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमने sigma 1 पॉजिटिव और sigma 2 नेगेटिव साइड में शो किया है, which means they have opposite signs. So this is the bigger circle. The others are sigma 1 by 2 and sigma 2 by 2 are smaller numbers. Okay, so when sigma 1 and sigma 2 have opposite signs, then this value is the absolute maximum shear stress. और ये in plane भी है, यानी when they have opposite sign, then in plane में इसी को in plane कह रहा हूँ, in plane maximum shear stress is also the absolute maximum shear stress, यानी जो x prime y prime वाला था ना जिसको हम in plane बोलते थे,
वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी है। यानी समझ नहीं आई? यस सर का मतलब कि मैंने तो कहा कि नहीं समझ आया, अगर आप कह रहे यस सर इसका मतलब आपको समझ नहीं आई। Alright, so absolute max would be equal to, look at this equation, sigma 1 minus sigma 2 by 2 with sigma 1 and sigma 2 have opposite signs, और जब आप वैल्यू डालेंगे तो sigma 2 की algebraic sign नेगेटिव के साथ डालेंगे। Now let me quickly take you to this problem. The point and surface of the pressure is subjected to the state of plane stress. Determine the absolute maximum stress. जो भी आपने प्रॉब्लम्स पीछे किए हैं उन सब में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताएं। यस तो स्टेप्स क्या होंगे? The first thing that you need to do is सर्कल no looking from x axis y axis कौन सी? Yes. All these calculations talk only about one thing, sigma 1, sigma 2. Everything is in terms of sigma 1 and sigma 2. ऐसा नहीं है? You gotta find sigma 1 and sigma 2 first, and then you can say, okay, these are the values, and based on them we can say, this is the absolute maximum shear stress. So what does it mean? मैंने आपको बोला था ना, maximum shear stress is gonna be our reference state for the next future calculation. और खाली अभी की नहीं, we're gonna make more calculations based on that. So absolute maximum shear stress, principal stress is first part. इसका मतलब क्या है? You gotta find theta p, you gotta find sigma max, sigma min. चाहे प्लॉट ना भी किया, ना भी आपने किया हो, एलिमेंट ना भी दिखाया हो, ठीक है, that's fine. लेकिन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। For this part, जब मैं कहूँगा कि एलिमेंट में ये शो करना, then you should be able to show it, principal state of stress का. But at least for this part, you don't need to know how to orient the elements, but you need to be able to calculate sigma 1 and sigma 2. ठीक है? और sigma 1, sigma 2 आगे, what next? रेडियस एंड अगर मैं कहूँ कि यार मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बस मुझे खाली यार तो वैल्यू बता दे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, फिर तो दो केसेस दो फार्मूले, सेम साइन ये फार्मूला, अपोजिट साइन ये फार्मूला, एंड द स्टोरी। पर अगर मैंने देखना हो कि ये खाली इसने फार्मूला याद किया हुआ है या इसको पता भी है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं कहूँगा तीनों प्लेन्स के लिए मैं सिंपली कहूँगा विदाउट यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एंड दैट मींस कि जो मैंने यहाँ पे कहानी सुनाई है वो कहानी सुनाई, ठीक है। मैं कहूँगा लेट्स से शो योर शो द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, शो द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, यानी इसका मतलब मैं कहूँगा 3 मोर सर्कल ड्रॉ करने हैं। क्या रहे? लैपटॉप तो आपको पता है ना लाउड होता है एग्जाम में, अब तो नहीं सरप्राइजिंग लगता आपको ये कि लैपटॉप वाला काम भी कोई हो सकता है। यू कैन ब्रिंग योर लैपटॉप। अब मैं कहूँ नहीं भी तो आप खुद ही ले आना, कोई मना करे, मैंने सर ने कहा था लैपटॉप लाजमी लेके आना है, ठीक है, लैपटॉप लाजमी लेके आना है आपने, ठीक है, पेपर वाले दिन। सो 3 सर्कल को ड्रॉ करके फिर दिखाएं लेबल करके वहाँ से ऑटोकैड से वो डायमेंशनिंग उठा के ये रेडियस इतना है, ये वाला इतना है, ये वाला इतना है, and this is the radius that is the bigger one, so that's why this is the absolute maximum shear stress, ठीक है। लेकिन आपको ये कहानी पता होनी चाहिए कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के रिजल्ट्स आने के बाद ये रीडिफाइन होंगे एक्स वाई, एक एक्स वाई, ये देखो जैसे ये कर रहा है, देखो उसने कहानी शुरू उधर से कर दी जहाँ से मैंने आपको कहना था, लेकिन खैर उसने पहले से आपको सिग्मा 1 देखो, उसने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ही दिखा दी शुरू से ही। ये एलिमेंट देखो 16 और 32, ये 16 और 32 पे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, पहले कुछ और दिखाया गया होगा सर, जनरल सिग्मा एक्स भी होगा, सिग्मा वाई भी होगा, टा एक्स वाई भी होगा, पहले से ये जो वो प्रिंसिपल स्टेट स्ट्रेस से आगे कहानी सुना रहा है आपको, तो पहले आपको ये कहानी बनानी पड़ेगी। उसने तो सीधे सीधे काम खैर किए हुए हैं, उसने सर्कल्स बारह ड्रा तो किए हुए हैं, यहाँ पे ये सर्कल्स उसने ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन आप मुझे वैसे चलो थोड़ा सा आपका रेक्टेंगल चेक हो जाएगा ना, 16 और 32 दोनों सेम साइंस के हैं, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी?
16 कितनी होगी? सिग्मा 1 की वैल्यू 32 और सिग्मा 2 की वैल्यू 16 हाँ, ठीक है और सेम साइन है। सेम साइन है हाँ। यस 16 आ रहा है 16 हाफ ऑफ सिग्मा 1, यस सर। ठीक है। एंड में आंसर आपको दिखा देता हूँ। आंसर कहाँ आपको दिखा है? हाँ पहले दिखा दो 16 मेगापास्कल, ठीक है। हमें इससे कंसर्न नहीं कि ये किस प्लेन में है, किस जगह पे है, हमने कहा 16 मेगापास्कल है बस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। किस प्लेन में रोटेट करके आया है ये भी हमने इस वक्त कम से कम नहीं कुछ आगे कितने थे, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है ये कि आप वो 3D में फिर वो बताएं कि ये YC में कितने एंगल पे है, लेकिन एटलीस्ट आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। इसी तरह का उसने यहाँ पे एक कहानी डाली हुई, देखो यहाँ पे वो आपको ये जो मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, मतलब मैंने सुना था आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उसको दिखाया हुआ है ये कि ये एलिमेंट है। अब आप बताएं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है। सो सिग्मा 1 सिग्मा 2 नजर आ रहे हैं ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैलकुलेट हुए और एब्सोल्यूट जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज आ गई, उसने कहा सिंस दीस स्ट्रेसेस आर अपोजिट साइंस, और मुझे पता है कि अपोजिट साइंस के साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, तो उसने बस फार्मूले लगा के वैल्यू है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि इसको जरा मोर सर्कल, तीनों सर्कल प्लॉट करके फिर दिखाओ, ठीक है। मैं आपको जो बात कर रहा था वो ये थी, गिवन एलिमेंट ये है ना, गिवन एलिमेंट के लिए x y हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। जब आपको ये वाला एलिमेंट आ जाएगा एब्सोल्यूट सॉरी सिग्मा 1 सिग्मा 2 वाला, अब रीडिफाइन होंगे x y। अब ये जो एलिमेंट है इसका ये x सॉरी हाँ ये प्रिंसिपल से हाँ ये प्रिंसिपल ये जो 31 से जाके 2 लिखा हुआ है ना psi, इसको आप x एक्सिस मानेंगे। सिग्मा 1 के अलाउंग जो होगा वो सिग्मा वो 51.2 है ना, वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, यानी मिनिमम वैल्यू है, कंप्रेसिव है ना, अपोजिट साइन में तो ये जो वो इसका मतलब ये आपका x बनेगा, इकतीस से ये 2 वाला जो एक्सिस है, और ये जो 51.2 वाला है ये आपका y कहलाएगा। रीडिफाइन जब करते हैं आपने, यानी कि तो ये 3 सर्कल्स, ठीक है, ये आपको प्लॉट करने आना चाहिए। अच्छा अगर आपको कोई बंदा कहे कि ऑटोकैड में नहीं करो, ग्राफ शीट के ऊपर कर दो, मसला तो नहीं? मसला ही मसला है। चलो फिर आपको ऑटो ग्राफ शीट में नहीं होगा, ऑटोकैड में होगा, यस ठीक है। सर मैथ कर दे लो। हाँ मैथ करके तो कैलकुलेशंस हो जाएंगे, लेकिन प्लॉट तो फिर गलत होगा ऑटोकैड में, ठीक है। सो ये 2-4 तरह के और प्रॉब्लम्स होंगी, आप खुद इनको देख लेना एंड that's it, Yes. ठीक है। We're done with this chapter.